Any questions from what we discussed yesterday? Hello, am I audible? Yes, sir. So I think we discussed in this. So last para. So in the last para it says the under the terms of the loan arrangement, the loan amount will be dispersed after the equity is being exhausted. So ये फिर आगे जो हमने ऊपर discuss किया था. Any idea why this clause will be added? Objective case clause though. Any thoughts? They will give the loan only when the amount of capital which the company has will be finished. Yeah, so क्यों ये clause add किया होगा? There has to be some logic to this, right? ताकि इक्विटी का कंट्रीब्यूशन रहे उसका प्रोजेक्ट में, जिससे सारा रिस्क डेट पे ना आ जाए. नहीं, वो रीजन नहीं है. इक्विटी कंट्रीब्यूशन तो वैसे भी कंफर्म्ड ही है ना. देखिए, अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसमें दो चीजें करेंगे हम लोग. ठीक है, एक तो आपको डेट स्ट्रक्चरिंग या लोन स्ट्रक्चरिंग सिखा रहा हूँ. आइडली ये इस जर्नी का, इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है क्या, बिकॉज दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम मॉडलिंग. ठीक है, बट गिवन जो हमने ये केस पिक किया है, इसमें अगेन अपॉर्चुनिटी है कि ये भी सीख सकते हैं, तो ये कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, दूसरा एक होता है वाटरफॉल कैश फ्लो. तो ये दो चीजें हैं जो इस पैरा से under this para we need to understand. ठीक है, so
When you say loan structuring, what does this mean? So मैंने आपको I think पहले बताया था hmm ये 125 or 16%, correct? This is what we discussed. केवल ये मुझे 125 करोड़ का लोन मिल रहा है at 16%. ठीक है, so what we did, if a bank is giving you 125 crores का loan at an interest rate of 16%, ये 16% क्या होता है? Why bank is charging 16%? हाँ जी, why bank is charging 16%? जब आप बैंक से होम लोन लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है. क्यों इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक आपसे? बोलिए. हाँ जी, नो आइडिया व्हाई बैंक चार्जेस दैट इंटरेस्ट रेट. एनीबॉडी? Sir, because RBI has set an prime lending rate, I mean, एक बेंचमार्क है जिसके ऊपर बैंक को चार्ज करना होता है. अरे हाँ, वो तो ठीक है, बट आई एम सेइंग वो तो आपने कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी बता दी कि वो कैसे कैलकुलेट करता है या क्या बेसिस पे कैलकुलेट करता है. आई एम सेइंग वो इंटरेस्ट चार्ज ही क्यों करता है? Whether he charges 5% or 20% or This is 16%. a business operation. Sorry, operations. दोबारा बोलो. This is their business process, and this is the way the bank does business. That's how bank earns, sir. So this is a compensation of the risk that bank is taking. When bank is giving you money, they are taking the risk, correct? उस risk Yes. का compensation है. What is the component of 16%? Component of 16% वो नहीं पूछा मैंने ये पूछा कि चाहे वो 16 You हो are you are told risk associated. risk associated means How much risk bank is taking? so the bank is taking some risk, correct? और उसका compensation है ये. हाँ या ना? Yes, sir. The bank is taking some risk and उस risk का compensation है 16%. So if from a loan structuring perspective, what you want as a borrower, ठीक है, तो ये सब clauses हमने डलवाए थे, ठीक है, हमने means as a part of the और इसको सर जो हम करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं डेट स्ट्रक्चरिंग. आप डेट को स्ट्रक्चर करना शुरू करते हो, ठीक है.
so मैंने बोला ये जो 16% है और whatever the interest rate, so let's say यहाँ पे 16 है, is compensation of risk that bank is taking on me. Me means client. अब जो दीपक पूछा था, which component of the risk? So this is becomes a credit risk. ठीक है. No, I'm not asking that. 16% has a component, different components, because the higher the risk, the interest rate will goes up. ठीक है, उसकी जरूरत नहीं थी, बट अगर इंटरेस्ट है तो 16% का जो ब्रेकअप होता है, अभी हम प्राइसिंग जो आप पूछ रहे हैं प्राइसिंग है डेट की, ठीक है. सो जो 16% है, this 16% प्राइमरी वुड बी माय कॉस्ट ऑफ फंड्स, या मैं बैंक की कैलकुलेशन कर रहा हूँ जो बैंक जिस तरीके से करता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस माय रिस्क प्रीमियम. सो व्हाट डज दिस मीन? ये करेंगे जब हम CAPM में आएंगे तब हम करेंगे, बट I don't want to complicate this for others, but specifically दीपक तुम्हारा जो क्वेरी है कि if I'm an ICICI बैंक और मैंने आपको 125 करोड़ रुपीस लोन दे रहा हूँ, and I am getting 125 crore, let's assume from HDFC or from markets at 7%, so I'm not going to give you loan less than 7% because that's become my cost of funds. और उसके बाद जो मैं तुझ पे रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, ऑफ गिविंग यू लोन, ठीक है, उस रिस्क का कॉम्पनसेशन ले रहा हूँ. सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द 16%. ये हम करेंगे जब हम CAPM में जाएंगे लेवल 2 में, जब हम डिस्काउंटिंग रेट्स कंप्यूट करेंगे. And this 16%, the interest rate is their business model of bank on which they work. Risk No, premium is the not business model of them. No. The 16%, because this has the cost of debt as well as the risk premium on which the business, the bank works. हाँ, बैंक का बिजनेस, यही बिजनेस मॉडल उनका यही है कि एक taking the money from central bank and giving the money to the lenders. The delta जो लेंडर है उसका बिजनेस मॉडल यही है that they borrow at X rate and they give loan debt X plus Y. ठीक है. सो नाउ एक बात बताओ. सो now if I as IB wants to decrease interest rate risk, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करवाना है क्लाइंट के लिए, what we should do? Then this comes in. We do this. ठीक है. What do you mean debt structure? कोवेनेंट्स ऐड किए जाते हैं. कोवेनेंट्स क्या होते हैं? लीगल क्लॉजेस होते हैं which changes risk profile of the loan. ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं. ठीक है, तो प्लीज फोकस, ये थोड़ा सा थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. सो ना जो 16% है, ये this bank 16% is on account of a compensation of the risk that bank is taking when they're giving loan to my client. If I have to decrease the interest rate risk for decreasing interest rate, I need to
decrease the risk for the bank? Do you agree on this important line? इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, जो लास्ट मैंने येलो में हाईलाइट किया। अगर मुझे 16% से इंटरेस्ट रेट को नीचे करना है तो मुझे बैंक का रिस्क कम करना पड़ेगा, तभी बैंक इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए एग्री होगा। हाँ करना। Yes. Anybody, any doubt in this part? The line which is in yellow. Okay, I take that silence is yes. So no questions on this. So now तो मैंने मीन्स हमने ये क्लॉज ऐड करवाया फर्स्ट। तो ये हमने बैंक को कन्विंस किया ऐड करने के लिए, बैंक ने ऐड नहीं किया था पहले। Now if we get this clause added, this clause is decreasing the risk for the bank or increasing the risk for the bank? Take a minute, think and then respond. Hanji. So this clause is increasing the risk for the bank or decreasing the risk for the bank? It is decreasing the risk. It is decreasing the risk. अच्छा, बाकी लोग को भी, everybody has the same view? Any different thoughts on that? Anybody who believes this is increasing the risk for the bank? Okay, Shrikant, why you believe this is decreasing the risk for the bank? If we get this clause or covenant added to the loan contract, why this will decrease the risk for the bank? Can you explain? Sir, it will decrease the interest part. अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट रेट कम होगा कि ज्यादा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ रिस्क। आपने कहा इस क्लॉज which is highlighted in yellow, this will decrease the risk for the bank. I'm asking you why this clause will decrease the risk for the bank. It will increase the risk, sir. It will decrease the risk for the bank because Go ahead, Shrikant. because it will ensure that वो हमारा पार्टिसिपेशन रहेगा, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले यूज अप हो जाएगा, तो उनका क्वांटम ऑफ लोन भी कम हो जाएगा और रिस्क भी कम हो जाएगा। अरे कैसे कम हो जाएगा? आप बता रहे हो रिस्क कम हो जाएगा, वो पॉइंट क्यों कम हो जाएगा वो भी आपने एड्रेस नहीं किया। लोन तो उनको डिसबर्स होएगा ही सर। एक सेकंड कृतिका, so you वो saying तो डिसबर्स होगा। हाँ श्रीकांत, why this will decrease the risk? और लोन अमाउंट कोई कम नहीं होगा, लोन अमाउंट 125 करोड़ फिक्स्ड है। लोन अमाउंट तो कम नहीं होगा, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, बट उसके जो टाइमिंग है उससे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जो टाइमिंग है उससे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। That's not an answer to my question. वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कम हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ। तो आपके हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा श्रीकांत? इंटरेस्ट रेट तो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। अरे डिस्क्रिप्शन पे है और मैं उसको प्रपोज कर रहा हूँ कि ये क्लॉज ऐड कर दो।
अगर वो ये ऐड क्लॉज कर देता है तो अगर आप बैंकर हो तो आपके लिए रिस्क कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है या सेम है, ये बताओ। तब तब अगर हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा या हमारा कंट्रीब्यूशन पहले आ जाएगा तो रिस्क तो कम ही हो जाएगा ना। क्यों क्यों बताओ ना मुझे, आप उस लाइन को रिपीट कर रहे हो, आई एम आस्किंग यू व्हाई। तो इसका आइडिया नहीं है, बट ये कि हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो रिस्क बैंक का कम हो जाएगा। बट वी डोंट नो द रीजन। हाँ, आई डोंट नो द रीजन। ठीक है, हाँ कृतिका बोलो, आप शायद इंक्रीज बोल रहे थे। सर बोलो। आई थिंक बैंक का रिस्क इंक्रीज होगा बिकॉज जो कंपनी के पास ऑलरेडी कैपिटल था उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया प्रोजेक्ट में, देन बैंक विल आल्सो डिसबर्स द लोन। फिर जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट इनकम आगे कंपनी पे कर पाएगी या नहीं, वो एक रिस्क ओके आई फील कि ओके रहेगा बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी अपना सारा पैसा लगा दिया है। ओके ठीक है। और सर डिक्रीज होगा व्हाई? डिक्रीज क्योंकि सर कंपनी का क्रेडिबिलिटी इक्विटी से बढ़ेगा। इक्विटी में अगर इक्विटी से फंड रेज करेगा तो इन्वेस्टर को जो रिटर्न देगा वो हाई हाई रिटर्न देगा, जिसकी वजह से कंपनी का क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा मार्केट में। No, I और didn't जिसके understand this high और return. You need to repeat this high return. हम्म, You need to repeat this part. Because where you said that this will give high return. तो इससे कंपनी का मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ने की वजह से बैंक उसका इंटरेस्ट रिस्क फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कम करेगा। Why? क्रेडिबिलिटी ही सर, और कुछ नहीं। क्यों क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा? इसका क्रेडिबिलिटी से क्या लेना देना? सब जब इक्विटी से फंड रेज करेगा तो वो इन्वेस्टर को हाई रिटर्न देगा, कैसे हाई जिसके रिटर्न देगा? कारण मुझे वो समझाओ ना। इन्वेस्टर को हाई रिटर्न देगा, वो पार्ट समझाओ, कैसे हाई रिटर्न हो जाएगा? हाँ जी, कैसे हाई रिटर्न हो जाएगा? ठीक है, हाँ पारुल, सॉरी बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, मेरा सिंपल लॉजिक ये है कि कोई प्रोजेक्ट जब ऑनगोइंग है तो उसमें लेंडर इन्वेस्ट करने मतलब डेट देने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा अदर देन कि प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है उसके लिए, तो उसमें रिस्क क्यों ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट क्लाइंट अपना कर चुका है और वी कैन सी द तो स्टेटस की कितना हो चुका है और कितना पेंडिंग है। सो उससे रिस्क कैसे कम होता है? थोड़ा राइट ट्रैक पे, थोड़ा सा कंटिन्यू करो, हो जाएगा क्लोज। हाँ, वाई? कि उससे क्या होता है? आप बैंक हो, मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया पैसा लगा के, उससे आपको क्या क्या चीज हो जाएगा? उससे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि प्रोजेक्ट चल रहा है एंड वी आर इन्वेस्टिंग इनटू द राइट डायरेक्शन, मतलब कोई मिसयूज नहीं हो रहा है फंड्स का, राइट? ठीक है, हाँ, so something of this sort. So it's not about the contribution of equity because Can you please repeat this question? Risk of what? risk of the clause which is highlighted in yellow. Will this clause decrease the risk or increase the risk? Of what? Of It will decrease the risk. हाँ, तो वही क्वेश्चन है कि डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। So suppose if I'm doing a business and suppose I go to, suppose पारुल के पास मैं आता हूँ, मुझे लोन दे दो,
जो दो सिनेरियोज है, मैं आपको पर बोलता हूँ मुझे लोन दे दो और आज लोन दे दो, मेरे पास इक्विटी है बट वो इक्विटी मैं अपने हिसाब से खर्च करूंगा, आप मुझे आज लोन दे दो, ठीक है, विच मीन्स मैंने अपना पैसे को रिस्क पर डालने से पहले आपके पैसे को रिस्क में डाल दिया। दो मैंने आपको कंफर्म किया इस बिजनेस में मैं इक्विटी भी लगाऊंगा, सो इट इज नॉट कि मैं इक्विटी नहीं लगाऊंगा, बट पहले इक्विटी लगाऊंगा बाद में डेट लगाऊंगा वो कंफर्म नहीं किया, बट आई विल इन्वेस्ट इक्विटी, विच मीन्स in the total project you will see debt as well as you will see equity, so that is one part. another मैं पर को बोल रहा हूँ कि आपका पैसा लगाने से पहले मेरे पास जितना पैसा वो मैं सारा खर्च कर दूंगा, फिर आपसे पैसा लूंगा, so this gives a small comfort, more comfort to the lender because he or she would have that comfort, okay, which means there is a one is what Parul said कि आपको वो 6 months या 3 months जितने मंथ में इन्वेस्टमेंट होगा उतने मंथ में क्या प्रोग्रेस हो रही है वो दिख जाएगा, ठीक है, that is one. Second is you will get more comfort, okay, because you are putting your own money into the risk and you have exhausted all the money, you are genuinely serious कि this business will work, तभी आप अपना पूरा पैसा इसमें लगा रहे हो, and that gives me a little more comfort कि हाँ this business will work, when somebody starting this new business this business will work because वो अपना और उसने पूरा पैसा exhaust कर दिया है, so that gives me a little comfort and hence that comfort in turn will result in decreasing risk, which in turn will result in decreasing the interest rate at which the bank is willing to give me a loan. Any doubt? सर ये लास्ट वाला एक बार रिपीट करना जो आपने बोला। Is this clear? सर ये लास्ट वाला एक बार रिपीट करना। So this gives me a comfort कि client ने अपना पूरा पैसा लगा दिया, so that is why it decreases the risk for me. For the bank. For the bank. सर एक बार वो जो आप डेप्ट स्ट्रक्चरिंग बता रहे थे एक बार वो रिपीट कर दोगे? मैं नेटवर्क में कुछ इशू था, मैं वो बार लीजिए वो हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ यही डेट स्ट्रक्चर है ना, जो हम ऐसे क्लॉजेस डालते हैं उसी को डेट स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। ओके तो सर इससे इंटरेस्ट रेट कैसे कम होगा? इससे रिस्क कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? रिस्क भी कहाँ लग रहा है ऐसा कम हो रहा है? नहीं लग रहा कम हो रहा है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अपनी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उस बिजनेस में आप मुझे पैसा दे दो, मैं अपना पैसा लगाऊंगा, दैट इज वन वे। दूसरा, मैं अपना पैसे लगा चुका हूं या पहले अपना पैसा लगा दिया, उसके बाद मैं आपसे ले रहा हूँ, तो किस में ज्यादा रिस्क है एज ए लेंडर, पहली सिचुएशन में कि सेकंड सिचुएशन में? फर्स्ट सिचुएशन में। फर्स्ट सिचुएशन में से रिस्क ज्यादा है। अपना पैसा यूज कर रहा है तो फर्स्ट सिचुएशन में रिस्क ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है सर। इसका मतलब सेकंड में कम है ना, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं।
तो सब मैंने जो भी कहा कि मार्केट क्रेडिबिलिटी की वजह से भी तो उसका रिस्क कम हो रहा होगा। तो आपने भी सही कहा, बस आपने गलत नहीं कहा। अगर वो प्रूव करना चाह रहे हो कि आपने जो कहा वो सही है, नहीं तो नहीं मैंने तो क्रेडिबिलिटी देखो फजलूर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने आपने जो कहा कि क्रेडिबिलिटी मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, वो ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा क्रेडिबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाएगी, उसका आंसर नहीं था। ठीक है, सो दैट डजंट गिव मी कंफर्ट कि हाँ आप उस पॉइंट को टच कर पा रहे, जो पॉइंट मुझे कन्विंस करे कि आपको फंडामेंटली चीज आती है। मैं ये नहीं कह रहा आपका आंसर गलत है, उस आंसर के पीछे जब और डिटेलिंग में पूछ रहे हैं तो वो आंसर नहीं आ रहा। दूसरा आपने बोला हाई रिटर्न, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा वो कौन सा हाई रिटर्न। एंड आई गेव यू मोर देन 30 सेकंड्स, आप पॉज में थे, कुछ आंसर नहीं दिया आपने उसको। देन आई हैव नो चॉइस बट टू गो द पारुल। वो हाई रिटर्न कहाँ से आया था, नहीं बताया था ना आपने वो। इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करेगा शेयर इक्विटी में, तो फिर रिटर्न हाई हाई रिटर्न का एक्सपेक्ट तो करेगा ही, तो कंपनी तो उसे हाई रिटर्न तो प्रोवाइड करेगी ही। मैं ये कहना चाह रहा था। आपको इसका लॉजिक पता है तो मैं आपसे दोबारा पूछूं, अगर आपको नहीं पता है तो फिर दोबारा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो आपको पता है क्यों हाई रिटर्न, इस क्लॉज को ऐड करने से रिटर्न कैसे हाई हो जाएगा, ये बात हो रही है। अगर ये क्लॉज को मैं रखूं तो इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न ज्यादा हो जाएगा उसका, ऐसा बोल रहे हो? या नहीं, इस क्लॉज मैं का कोई ये कह लेना रहा देना हूँ, नहीं है? नहीं इस क्लॉज से उसका कोई लेना देना नहीं। मैं ये सिर्फ कह हम रहा इस हूँ क्लॉज में मार्केट में डिस्कशन कर रहे क्रेडिबिलिटी हैं, बढ़ने। हाँ। हम इस क्लॉज की बात कर रहे हैं, तो इस क्लॉज से स्पेसिफिक बात करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पॉइंट नोटेड, उसमें कोई डाउट नहीं, वो सही है। और वो क्रेडिबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाएगी वो पार्ट थोड़ा सा मिसिंग था। और जो सेकंड पार्ट बोला वो गलत था, कि जो हाई रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है वो उसका कोई इस क्लॉज से लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर इस डिस्कशन में जरूरत नहीं है ना उसकी। क्लियर है फजलू? यस यस क्लियर। और किसी को कोई डाउट इसमें कि दिस बाय एडिंग दिस क्लॉज दिस विल डिक्रीज द रिस्क फॉर द बैंक? What's the meaning of covenant you क्लॉजेस, used in Excel? Okay. क्लॉज जो लीगल एग्रीमेंट में क्लॉज ऐड कर देता है उसको, उसका टेक्निकल टर्म कोवेनेंट होता है। ठीक है, सो इन केस नो क्वेश्चन, सो व्हाट डज दिस, सो मैंने बैंक को बोला कि अगर इसको मैं इस क्लॉज को ऐड करता हूं, सो व्हाट, सो बैंक एक्चुअली में एग्री होता है कि ठीक है मैं इसके लिए आपके 50 बेसिस पॉइंट कम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। सो विच मीन मेरा जो रिवाइज इंटरेस्ट रेट हो जाता है वो 15.5 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्या कर, As in us, if we finish with our all the equity and the money that we have and then we take the loan, isn't it more riskier for the banks to lend the loan after that? क्यों? क्योंकि व्हाट इज मोर रिस्की? कैश और वो सब तो सब खत्म हो गया ना, तो it should सो be व्हाट, व्हाट banks might feel riskier to give the loan if the person has no money left with it. Just got confused. so बैंक विल थिंक कि क्लाइंट के पास कोई पैसा नहीं है, सो लेट्स अज्यूम क्लाइंट के पास इक्विटी है 85 करोड़ की और उसको लोन लिया 125 पर। लेट्स डू दिस। सो क्लाइंट ने पूरा स्पेंड कर दिया लोन, ये 125। डज दिस मीन कि क्लाइंट ये इक्विटी यूज करेगा टू रीपे द लोन? आप आर यू ऑफ दैट व्यू?
अब लोन स्पेंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्पेंड तो इक्विटी करने वाला है वो। आप वो इक्विटी आपके पैसा रिपेमेंट करने के लिए यूज नहीं करने वाला वो। दोनों ही केस में खर्चा तो दोनों होने वाला है, स्पेंड दोनों होने वाला है, इस जस्ट किस ऑर्डर में स्पेंड हो रहा है। And in either of the case, client is not going to use this equity to repay you the money, to repay the loan to you. अगर मैं ऐसे कहता वो 85 करोड़ बैकअप है, which means if the client का बिजनेस नहीं चला तो 85 करोड़ को यूज करके बैंक का लोन रीपे कर देगा, then probably I would have taken or agreed with your thought that this probably would increase the risk. But in either of the case, this 85 crore is not going to act as a backup or a collateral for this loan. Hence, this 85 crore will not be used at all for repayment of the loan or interest for that matter. Okay. एक और एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेते हैं, शायद उससे ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे यू बाइंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है, आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का लेट्स अज्यूम टोटल वैल्यू 50 लाख रुपीस है, जिसमें से आपने बैंक से कहा कि मेरे को 30 लाख का लोन दे दो और मैं अपना कंट्रीब्यूशन इक्विटी जो कर रही हूँ वो 20 लाख कर रही हूँ, ठीक है कांशा। सो जब बैंक आपको 30 लाख का लोन देता है, क्या वो 30 लाख का लोन ये सोच के देता है कि आपके पास ये जो 20 लाख की सेविंग है आप इससे रिपेमेंट करोगे, या ये सोच के देता है कि फ्यूचर में जो पैसा कमाओगे उससे रिपेमेंट करोगे? आकांक्षा, sorry, not from this investment, not from this saving that you're investing back into the is this property correct? इक्विटी से थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट करता है आपका। रिटर्न ऐसे आई मीन रिटर्न मीन द रीपेमेंट, be it an interest, be it a principal. You with me, Akansha, on this? Yeah. So which means same logic should apply here. This equity 85 crore will not be used for repayment of the loan. Hence जो आप बोल रहे थे वो वहां पे थोड़ा सा वीक हो जाएगा आर्गुमेंट। Kansha, is this clear? Yes, sir. Thank you. Anybody else, any other doubt in this? सर ये प्रॉपर्टी वाले एग्जांपल में कोलैटरल लेगा बैंक? वो बैंक का डिसीजन है, लेता नहीं लेता। अगर कोलैटरल लेगा तो रिस्क और कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट और कम कर देगा। इनिशियली तो आपने अगर इंडियन मार्केट्स में देखा, जो होम लोन के इंटरेस्ट होते हैं वो लोअर साइड पे होते हैं, और जो पर्सनल लोन्स होते हैं वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, बिकॉज होम लोन्स में कोलैटरल होता है, तो कोलैटरल की वजह से बैंक का रिस्क कम हो जाता है, इसलिए वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। बट जो पर्सनल लोन होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, करेक्ट। तो अनसिक्योर्ड होने की वजह से जनरली वो रिस्क क्लाइंट का रिस्क फॉर द बैंक इज ऑन द हायर साइड, हेंस द इंटरेस्ट रेट्स आर जनरली ऑन द हायर साइड। सो जैसे ये गवर्नमेंट जो ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 85 करोड़ इक्विटी एंड 125 लोन, तो इसमें भी सर कोई कोलैटरल रहेगा कि मतलब वो सेपरेट डिसाइडेड रहेगा पहले से? करते हैं डिस्कस, उस पे हम आते हैं, विल कम टू दैट। ओके। ठीक है। So, to discuss the first clause. And one more thing, bank will monitor this progress of this. Of course. Because you can say out of 8 by 8 lane, you can start 4 and 4, start the operations and all that. नहीं सॉरी, ये क्या बोला? Operations means? I didn't understand this last part. 8 by 8 lane. This tool is 8 by 8 lane. You can say that okay, you can invest your 85 crores, produce 4 by 4 lane, 3 lanes, so that the operation can start. नहीं, so operation start का तो जो decisions हैं वो client थोड़ा ले पाएगा। Normally it happens कि half of the toll
ऑपरेशन में doesn't हो happen. जाता है नहीं, it will not happen. See, दीपक, वो ठीक है, in वहां this पे case वहां पे will not happen, but normally it happens. हाँ, तो नॉर्मली इट हैपेंस, उसके जो क्लॉजेस होंगे वो अलग होते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जब आपका पूरा बन जाएगा, सो you need to submit certain documentation to the some investigating agency जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, एंड वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसके सब चेक्स करेंगे फ्रॉम ए क्वालिटी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव, कि आपको जो बोला गया था आपने वही काम किया है, एंड वन दे गिव द एनओसी सर्टिफिकेट, देन द स्टोर विल गो लाइव, और उसके लिए वो 4 days लेते हैं। सो दिस मीन्स कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकेशन दी है अपने बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट में, आप उसको डिवेट नहीं कर पाओ। एंड ऑफ कोर्स दी वन ऑफ दी कंडीशन इज कि आपको जो स्पेसिफिकेशन दी गई वो पूरी सब बना के आप दोगे तब लाइव जाएगा, नॉट कि आपने आधा आधा बना दिया और आप लाइव ले जाओ एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग रेवेन्यू और बाकी काम चल रहा है साइड बाय साइड एंड यू आर पुटिंग द सेफ्टी एट रिस्क। वो सब जनरली in these developed countries are not so easy to do the way it is so easy to do in Indian markets. Right? Indian markets में आपका आधा रोड बन रहा होगा, उस लेन को चालू करके उस पे ट्रैफिक चालू हो जाएगा और आधे रोड पे काम हो रहा होगा। सो वैसा नहीं है, पूरा बनेगा तभी स्टार्ट होगा। Any other question? In this 85 crore they are spending in the local currency, what? हाँ, लोकल करेंसी है। Okay. जिस कंट्री में इन्वेस्ट करना है उस कंट्री की करेंसी में इन्वेस्ट फंडिंग है। And we have considered that forex all that in this. हाँ, फॉरेक्स ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि जो फंडिंग है वो लोकली है, दैट इज नॉट टू मच। इक्विटी तो लेके आ रहे हैं ना, इक्विटी तो 85 करोड़ लेके आ रहे हैं ना, it has a risk associated. 85 करोड़ एक्स रेट पे कन्वर्ट हो गया, सो देयर इज नो इक्विटी रिस्क। करेक्ट, इक्विटी रिस्क होता है जब पैसा मुझे वापस लेके जाना। केवल आप एक कंपनी स्टार्ट कर दोगे, दिस इक्विटी विल नेवर गो ऑफ, दिस इज अ गोइंग कंसर्न एंटिटी कंसर्न। आज मैं एक पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, but we have to consider when we have to prepare the total expenditure of that project, we have to consider that aspect also. वो मेरे लिए रिस्क नहीं है ना, वो इन्वेस्टर के लिए रिस्क है। वो जो पेरेंट कंपनी 85 करोड़ लगा रहा है उसके लिए वो रिस्क है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं जब रिपैट्रिएट करता हूँ मेरे लिए तब रिस्क आता है, तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट रिस्क। मुझे 85 करोड़ INR मिलेंगे हाथ में, खत्म। मेरा कमिटमेंट आपको दीपक ये है कि मैं 85 करोड़ रुपीस दूंगा आपको INR में। तो आप किस रेट पे दूंगा वो मेरा रिस्क है कि आपका रिस्क है? From client perspective, client 85 करोड़ लाएगा कहाँ से, किस करेंसी में लाएगा? INR में देगा, फॉर एग्जांपल INR में देगा। 1 minute 85 करोड़ INR में है, now I'm going to Singapore, नहीं, invest that 85 करोड़, 85 करोड़ उधर लेके जा रहा हूँ मैं सिंगापुर में। सो इफ यू आर टेकिंग दिस इन अ सिंगापुर, तो मैं आपको HDD में 85 करोड़ दूंगा। I will give you in Singapore dollars. Whatever 85 crore will be converted into Singapore currency, that much amount, not okay. Means So, they are converting it in the base currency, whatever the करेक्ट, जो currency आ रही है, जो पेरेंट है वो लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके लोकल करेंसी वाली वैल्यू इक्वलेंट टू 85 करोड़ वो इस SPV को दे रहा है। सो जो FX रिस्क है वो पेरेंट रन कर रहा है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर रिपैट्रिएट करने का टाइम जब आएगा, जो यहाँ पे नहीं है बिकॉज हम गोइंग कंसर्न कर रहे हैं, बट हाइपोथेटिकली गोइंग कंसर्न नहीं होता और हमें कहते हैं कि 2 साल के बाद पैसा वापस करना है सारा, तब ये रिस्क SPV को आता। हैविंग सेड दिस, अगर FX रिस्क हमें एनालाइज करना है वो भी कर लेंगे जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी करेंगे ना, बिकॉज वो रिस्क तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में फैक्टर करना है ना हमारे को, तो उस पर कर लेंगे। इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कराया नहीं है अभी। दीपक ये ओके है? इज दिस पार्ट क्लियर ना?
सॉरी, Yes, yes. ठीक है. So this we've discussed now. So our interest rate now stands at 15.5. ठीक है, और हमने एक क्लॉज ऐड करवा दिया है. ठीक है. Then now this clause. The repayment of the loan would be purely from the cash flow of the project. This will increase the risk for the bank or decrease the risk for the bank. With this business model, it will decrease the risk of the bank. Decrease the risk. और क्यों decrease होगा? Considering जो हमने अभी तक what we have evaluated earlier, that 2 lakh vehicles in this much amount of so means cash flow will be on a higher side, so bank will be the risk associated with the bank that when the money will be repaid to them will be that risk is repayment risk is less as compared to if you are not interlinking with the cash flow of the project, converting into an EMI, because this is not an EMI. Which is not EMI? This is a repayment of the loan will be paid purely from the cash flow of the project. तो वो जो repayment है वो EMI तो होगी. This is So a means fixed EMI. Fixed EMI. मतलब value fixed नहीं होगी. नहीं, that's because the value, because they will get from bank perspective, it will increase their risk. Sorry, अभी increase के decrease? No, sorry, increase the risk, because if they'll get the repayment earlier, they again have to जो amount they have received earlier, again reinvestment risk होगा उनको. तो सोच लो दीपक, I think just think through this. बाकी लोग? It means that risk the project, सॉरी, एक ही करके. हाँ पारुल. it means the project start हो जाएगा, उसके बाद जो income आएगी उसमें से pay करेंगे. Correct. Project start हो जाएगी, जो income आएगी उसमें से pay It will करेंगे. increase the risk. Yeah, this is what it means. Sorry. It will This will increase the risk. increase the risk. Why it will increase the risk? Because वो simply उतने time idle रहना पड़ेगा बैंक को. It will only it will not get any installment amount from the borrower. तो वो future what? तो income तो uncertain ही होती है ना. पर उसका interest तो charge कर रहा है ना वो मुझे. Interest, the borrower will be paying the interest for the time period. Of course. मैंने आज लोन दिया आपको और मैं 2 साल तक रीपेमेंट नहीं कर रहा तो इंटरेस्ट तो चार्ज करूंगा ही ना. नहीं But if we're करूंगा. talking about the whole, नहीं वो तो होता है. Yes, the bank will. But if we're talking about the whole repayment of the loan, so there might be chances कि because of the less income or because of uncertainty in returns, थोड़ा बैंक को उसमें risk हो because of कि not sure कि कितना traffic आएगा, कितना client को profit मिलेगा, तो उस हिसाब से ही वो बैंक को pay कर पाएगा अपना installment amount. अच्छा, ठीक है. ठीक है. यस श्रीकांत. सब इंटरेस्ट का पेमेंट का डिले हो जाएगा क्योंकि अभी प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से रिस्क बढ़ जाएगा. आप कह रहे हो इंटरेस्ट का पेमेंट डिले हो जाएगा इसलिए रिस्क बढ़ जाएगा. ओके, ठीक है.
Anybody else? Okay. Now I think so. This will increase the risk. Okay. So जैसे पारुल और श्रीकांत ने बोला yes. Now in terms of why, so let's take two scenarios. One, जैसे इंडिया में typical home loans होते हैं. Okay. So in India typical home loans are कि suppose मैंने बैंक से लोन लिया, मुझे बैंक को EMI पे करना है, वो EMI अमाउंट और टाइम दोनों फिक्स्ड हो जाते हैं. So which means I have to pay this amount whether my salary goes up, whether my salary goes down, ठीक है, whether I get promoted or I guess salary remains same, whatever, they're not bothered. They say okay ये EMI आपकी फिक्स हो गई है, इस मंथ में इतनी EMI पे करनी. So बैंक को पता है स्टडी कैश फ्लोज आएंगे फ्रॉम EMI पर्सपेक्टिव. वीज़ मैं बोलता हूँ अगर मेरी सेविंग होगी तो मैं पे करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा, जिस मंथ मेरे पास पैसा होगा तो मैं पे करूंगा, जिस मंथ नहीं होगा तो नहीं पे करूंगा. तो उस वाले सिनेरियो में बैंक का रिस्क बढ़ जाता है. Is everybody okay till this point? जो बैंक ने लोन इशू किया है वो बिजनेस मॉडल देख के किया होगा या ऐसे ही दे देगा बैंक? मॉडल देख के किया. उसने ये भी देखा होगा कि नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑपरेशंस कितना होगा, ये भी देखा होगा. So as such they will not pay this, considering the cash flow will be on higher side. Cash flows will be Cash on to the generate higher side. cash to generate होगा after stipulated time of 2018-19 whatever can be a delay in this project. Cash to generate होगा उसमें. And whatever they will monitor their accounts also. Correct. How much cash flow will be there? Whatever is coming after paying this operational part, it will be transferred to the bank. Okay. So go ahead, complete this. Yeah, means, now tell me how the risk is increased. इसको छोड़ो. Considering नहीं आ रहा हूँ. सो एक मैंने सैलरी, सो आप बैंक को आप बैंक हो, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, अपनी सैलरी लेके आपके पास आया, सैलरी स्लिप लेके आया, ठीक है, आई एम वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट लेस देन 2 years, आपको सैलरी लेके आया. आपको मेरी सैलरी स्लिप से, मेरे टैक्स रिटर्न से कैश फ्लो की एक सेंस मिल जाएगी आपको. दीपक? Yes. Because this is not we have to compare peer to peer. This is not that model what you are telling. Correct, I agree. तो but मैं इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, then I will go back to that example also. क्या हुआ, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि वो नहीं समझाऊंगा. Just give me a minute ना, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो. So मैं आपसे बैंक लोन लेता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ दीपक मुझे बैंक लोन दे दो. आपने कहा कि निशांत हर महीने 100 रुपीज का EMI पे करना, जिसमें 100 रुपीज में आपका एक प्रिंसिपल पोर्शन है और एक इंटरेस्ट पोर्शन. मैंने कहा डन. तो आपने मुझे लोन दे दिया और आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैं हर मंथ आपको 100 रुपीज का EMI पे करूँ. क्लियर है दीपक यहाँ तक? No, this is normal. Yes, please. ठीक है. अब मैंने आपको कहा कि यार मेरा EMI फिक्स मत करो, मेरे को जिस मंथ सेविंग्स होगा उस मंथ में आपको पे कर दूंगा. ज्यादा सेविंग होगा ज्यादा पे कर दूंगा, कम सेविंग होगा कम पे कर दूंगा, जीरो सेविंग होगा जीरो पे कर दूंगा. Okay. आप समझ जाओगे. Hold for a minute. आपको पे करना था 100 रुपए, ठीक है,
आपने पे कर दिया 500 रुपीज, इंटरेस्ट विल डिक्रीज टू द बैंक, किसको पे इंटरेस्ट अमाउंट विल डिक्रीज टू द, बिकॉज प्रिंसिपल आपने डिक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा उसका जो फ्यूचर में आना था उसका, विच इज कैश फ्लो टू द बैंक। नहीं समझा मैं, 100 रुपीज 500 रुपीज कहाँ से आया? नहीं, आप कैश फ्लो अगर मेरे पास ज्यादा है तो मैंने ज्यादा पे कर दिया, करेक्ट। ठीक है। अभी जो इंटरेस्ट आना था, अगर मैं 100 रुपीज EMI पे करता, वो एक्सटेंडेड होता लोन 5 years, नाउ वी हैव रिड्यूस्ड इट टू बाय पेइंग प्रिंसिपल अमाउंट। जो इंटरेस्ट लॉस हुआ है बैंक को, वो एक लॉस है बैंक को। इंटरेस्ट लॉस हुआ बैंक को, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट की बात कर रहे हो? हाँ, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रीफाइनेंसिंग वाला जो आपने पहले बोला था वो। हाँ, रीफाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो रिस्क बढ़ा ही है ना बैंक के लिए, वही तो बात कर रहे हैं हम, रिस्क बढ़ा है ना बैंक के लिए। रिस्क बढ़ा कहाँ सर, रिस्क तो घट गया ना। रुक जा, आ रहा हूँ, तुम पे भी आता हूँ। हाँ दीपक, सो आई पॉइंट नोटेड, तो इस केस से भी तो रिस्क बढ़ा ही ना बैंक के लिए। because what logic we are giving it कि नहीं कैश फ्लो एक्सटेंड हो जाएगा, वो अरे एक ही बात है, कैश फ्लो एक्सटेंड हो जाएगा तो घूम के आपके पॉइंट पे आएंगे ना कि कैश फ्लो एक्सटेंड हो गया। दो पार्ट, एक है क्रेडिट रिस्क, एक है रीफाइनेंस रिस्क। दोनों बैंक के लिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो आप बताओ। रीफाइनेंस रिस्क तो शायद आपने खुद ही एक्सप्लेन किया था पहले कि वो बैंक के लिए बढ़ रहा है, हेंस दैट रिस्क गोज अप। ये पार्ट क्लियर है तो क्लोज करते हैं इसको। आई वांट टू नो दैट क्रेडिट रिस्क कैसे बढ़ रहा है उसका बैंक का, क्रेडिट बिकॉज रिस्क कैसे बैंक बढ़ रहा है? 100 इतना बड़ा पैसा दे रहा है बैंक उसको, तो दे हैव इवैल्यूएटेड द मॉडल एवरीथिंग एज सच, दे विल नॉट पे द अमाउंट। व्हीकल्स कितना मूवमेंट होगा, कितना ऑपरेशन कैश फ्लो आएगा एंड ऑल दैट। क्रेडिट रिस्क कैसे बढ़ रहा है कि जब मैं बैंक से मैंने होम लोन लिया, बैंक ने एक EMI कंप्यूट किया, उसने कहा ये EMI अगले 5 साल में आप मुझे पे कर दोगे तो मेरा लोन पूरा रीपे हो जाएगा। ये तब जब फिक्स्ड EMI कॉन्सेप्ट है। अब मैंने उस EMI को बोला फिक्स हटा दो, मेरे पास जितना होगा मैं उतना पे करूंगा, ठीक है, देखो मेरे पास सैलरी स्लिप है, सब कुछ है, तो मेरा इनकम की प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते ठीक है, बट बाय दिस लॉजिक हो सकता है आपका 5 साल का जो लोन रिपेमेंट करना आप उसको 8 साल में रिपेमेंट करो। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स ही कम हो रहा है। आप मेरे बैंक अकाउंट को मॉनिटर कर लेना, उसमें सेविंग्स उसका कम आ जाए, कोई और खर्चे आ जाए, क्योंकि लोन रिपेमेंट तो सेविंग्स के लिंक कर रहे हैं ना, हम रेवेन्यू से दोनों लिंक कर रहे हैं, यानी इसी को वाटरफॉल बोलते हैं। ऊपर पैसा आया, ऊपर से पैसा गिरते 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 नीचे बचा ही नहीं, तो मैं आपको इस मंथ पेमेंट नहीं करूं। तो मेरी जो लोन रिपेमेंट मैं 5 साल में करने वाला था बाय अ फिक्स्ड EMI कॉन्ट्रैक्ट, विच इज नाउ बीइंग चेंज्ड टू अ लिंक्ड EMI कॉन्सेप्ट, उसमें मेरा जो 5 साल का रिपेमेंट है माइट गेट एक्सटेंडेड टू 8 years। दीपक, यू विल मी टिल दिस पॉइंट कि जो लोन का टेन्योर का पेमेंट प्लान है वो एक्सटेंड हो भी सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। तो यानी जो अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा आ गई बैंक के लिए, और जब अनसर्टेनिटी बैंक के लिए ज्यादा आ जाती है, वो अनसर्टेनिटी बैंक के लिए रिस्क ही है ना। the risk which risk we are मुझे कंप्लीट करने दे। अगर रिड्यूस हो जाता है तो वो रीफाइनेंसिंग रिस्क है बैंक के लिए, वो इंक्रीज हो गया। अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्रेडिट रिस्क बैंक के लिए वो भी इंक्रीज हो गया। दोनों ही टाइप ऑफ रिस्क बैंक के लिए इंक्रीज हो गए ना। आप बोलो कहाँ पे डाउट है? तो अगर इंक्रीज हो रहा है and they are certain that the whatever we have given it to that as a loan, it will be paid not in 6 years, in 8 years, opportunity cost भी तो मिल रहा है in the form of interest। Agreed, बड़ो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बेसिस कैलकुलेशन था कि 5 साल में रिपेमेंट कर दोगे, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि यार 5 साल वाला मैं कमिटमेंट नहीं करना चाहता, उस कमिटमेंट को वॉलेटाइल रखना चाहता हूँ, जल्दी हुआ तो जल्दी पे कर दूंगा, लेट हुआ तो लेट पे कर दूंगा। कहेगा भाई मैंने 15% या 16% इस कैलकुलेशन में दिया था 5 साल में, अगर आपको वॉलेटाइल करना है तो मेरा रिस्क बढ़ रहा है, दोनों रीफाइनेंसिंग रिस्क भी बढ़ रहा है, क्रेडिट रिस्क भी बढ़ रहा है, तो मैं 15 की जगह 15.5 पे दूंगा या 16 की जगह 16.5 पे दूंगा।
तो रिस्क बैंक के लिए बढ़ रहा है। स्टेटमेंट के साथ तो उसने ऑलरेडी 16% में ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी ले ली होगी उसकी, इफ इट इज अ फ्लोटिंग कैश फ्लो। नहीं ली है, उसने सिर्फ ये अकाउंटेबिलिटी ली है कि आप इस कैश फ्लो के मॉडल पे मुझे 5 साल में रीपेमेंट कर दोगे। जब मेरी लोन की रीपेमेंट नॉट शो दिस स्टेटमेंट टू बैंक। विच स्टेटमेंट टू द बैंक? This what repayment of the loan would be paid purely from the cash flow of the project. ये तो मैं ऐड करवा रहा हूँ। Without knowing this, bank is freezing the interest rate. दीपक, ये वाली लाइन ये तो मैं अब ऐड करा रहा हूँ। ये आपके होम लोन्स में होती है क्या? जो बाय डिफॉल्ट होम लोन्स मिलते हैं उसमें लाइन होती है क्या? उसमें उल्टा होता है। नहीं, बैंक this is not the case of home loan. Because you don't have any collateral. This is a purely unsecured loan. Deepak, let's stay on home loan first. I've told you कि let's not get into the other home loan close करो, मैं आपको इसमें लेके आऊंगा unsecured वगैरह। आप होम लोन पे पहले क्लोज करो एक पीस को। होम लोन मैंने आपसे लिया है, होम लोन पे जो टिपिकल डिफॉल्ट होम लोन होता है उस पे क्लॉज नहीं होता है। जब बैंक इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करता है तो बैंक वो इंटरेस्ट रेट को इस क्लॉज को हटा के कैलकुलेट करता है कि अगर तुमने मुझे लोन दिया, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 5 साल में मैं रीपेमेंट कर दूंगा, तो कहता है ठीक है ये पैसा मेरा 5 साल में आ जाएगा, ठीक है, इसकी सैलरी ठीक ठाक दिख रही है, 5 साल में पेमेंट कर देगा, चलो इतना इंटरेस्ट रेट है। अब मैं जब बोलता हूँ कि मैं 5 साल में पेमेंट नहीं करूंगा, इसको या तो 5 साल से पहले भी कर सकता हूँ, 5 साल से बाद भी कर सकता हूँ। तो अब आप मुझे बताओ क्या बैंक के लिए रिस्क प्रोफाइल बढ़ रहा है इस लैंडिंग में कि नहीं बढ़ रहा है, या रिस्क प्रोफाइल सेम ही है? Do you have that option given by the bank that you can after freezing that EMI, नहीं अब मैं नहीं पे करूंगा, based on my cash flow I'll pay that? हाँ, वो ऑप्शन नहीं है। मैं बैंक को मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ, क्या आप इस ऑप्शन को कंसिडर करना चाहते हो? मैं प्रपोज कर रहा हूँ। तो बैंक ने जो फर्स्ट मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया लोन का, या जो लोन का प्रपोज मॉडल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जो दिया उसमें ये क्लॉज नहीं था। उसमें ये क्लॉज था कि आप फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ या हर ईयर पे करोगे, एंड हेंस माय इंटरेस्ट रेट इज 16%। मैं बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं हर मंथ फिक्स पे नहीं करना चाहूं और मैं आपको उससे कैश फ्लो से लिंक करना चाहूं, तो आप ओके हो? बैंक कहता है हाँ मैं ओके हूं, बट इससे मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। यहां तक आर यू विद मी? Yes, for home loan it's okay. Yeah, for home loan, for correct home loan। यहां तक आप क्लियर हो कि वो बैंक का रिस्क बढ़ जाएगा? Yes. अब वो बैंक का रिस्क बढ़ जाता है फॉर दिस होम लोन, तो बैंक कहता है देखो निशांत, अगर तू चाहता है मैं ये क्लॉज ऐड करूं तो मेरा रिस्क बढ़ रहा है, इसलिए मैं पहले जो 16% दे रहा था, अब मैं उसकी जगह देखो 16.5 पे दूंगा। अब ऐसा बैंक मुझे काउंटर कर रहा है कि ये क्लॉज को ऐड करने के लिए मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगा, विच मेक सेंस टू मी, क्योंकि यार अगर मैं क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल बैंक का रिस्क प्रोफाइल बढ़ा रहा हूं तो बैंक ऑफ कोर्स उसको कॉम्पनसेशन करेगा by adding some basis points to this interest rate। यहां तक अब कोई डाउट? होम लोन में ही है हम लोग अभी भी? No. ठीक है, अभी रुको। किसी और कोई होम लोन में ये एग्जांपल में कोई डाउट बिफोर वी गो बैक टू दी जो हमारा प्रोजेक्ट या जो ये टोल वाला केस है? Anybody, any doubt in this home loan example? ठीक है, अब इसको रेप्लिकेट करते हैं अपने एग्जांपल में। ठीक है, सो लेट्स डू दिस अगेन। दीपक, अब आप बैंकर हो और मैं ये XYZ इंफ्रा, मैं आपके पास आया, अभी मैंने आपको एक क्लॉज नहीं दिखाया, मैं आपके पास ये पूरा लेकर आया, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है, या पूरे डिटेल्स लेकर आया, मैंने कहा मुझे लोन दे दो। आपने कहा ठीक है मैं लोन दे दूंगा, और मेरा एस्टिमेशन है कि आप लोन की रिपेमेंट जो है अगले 5 साल में कर दोगे, बिकॉज आपके कैश फ्लो इस तरीके से हैं, और इन कैश फ्लो में इतना इतना मुझे पैसा लग रहा है, आप ले लूंगा, मैं फर्स्ट ईयर में इतना ले लूंगा, सेकंड ईयर में फिक्स करके 5 साल में ले लूंगा, और आपने मुझे 16% पे इंटरेस्ट दिया। अब मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ कि यार मेरी EMI को फिक्स्ड मत करो, EMI को मेरे पे छोड़ दो। मेरे पे मतलब
मैं फर्स्ट ईयर कितना पे करूं, सेकंड ईयर कितना पे करूं, यू विल नॉट डिसाइड, आई विल डिसाइड. If I have less money, I will pay you less. If I have no money, I will not pay you. If I have more money, I will pay you. So Deepak, if you are a lender, अब आपके लिए रिस्क प्रोफाइल चेंज हो रहा है या सेम है? It's increasing. नाउ अभी हम होम लोन में नहीं है, इज स्टिल इंक्रीजिंग. It will increase. But my point is that you are told that कि 15.5% पे हमको लोन मिल गया है. नहीं नहीं, 16% हमें बैंक ने बोला कि 16% पे हमको लोन मिल गया है, and we have shown, we have done the calculation on that 16%. Now this statement is coming because this will alter that the whole 16% पे मिल गया नहीं बोला था, 16% में बैंक देने को रेडी है. दोनों में डिफरेंस है. अब उस रेडी है, मैं उस पे और ज्यादा जाके अपनी लोन स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ ना. I'm trying to bring my financial expertise कि मैं किसी तरीके से क्लाइंट के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर सकता हूँ क्या. दैट इज व्हाट वी डिस्कस ना, लोन स्ट्रक्चरिंग. इसलिए मैंने कहा कि ये करा नहीं करता है, बिकॉज दिस इज लिटिल आउटसाइड द मॉडलिंग पार्ट. सो 16% बैंक, ये हमने जो कहाँ गया, आई थिंक इस एक्सेल शीट में था, हाँ ये वाला करेक्ट. ये देखो, ये जो 16% हमने एग्री किया था, इस पे मिल गया नहीं बोला था, ठीक है. इस पे ये बोला था कि इस रेट पे बैंक रेडी है देने के लिए, और जब वो देने के लिए रेडी है तो वो उसने कुछ क्लॉजेस डाले. अब मैं बैंक को बोल रहा हूँ यार अगर मैं इस क्लॉजेस को ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा. तो वो उस क्लॉजेस को जो मैंने उसको रिवाइज करके दिए, उस पे अपना रिस्क प्रोफाइल को असेस करके मुझे रिवाइज रिटर्न का ऑफर दे रहा है. दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. और क्यों, ये भी समझ आएगा, एक बार कंप्लीट हो जाएगा ये आपको समझ आएगा इससे क्या बेनिफिट हम लेके जाएंगे. सो लोन अभी लिया नहीं, ये 16% पे वो एग्री हुआ था, उसका फर्स्ट ऑफर था मुझे. इनका फर्स्ट ऑफर नहीं, सिर्फ ऑफर था. अब मैं उसको काउंटर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसको ये बोल रहा हूँ क्या अंडरस्टैंड, आपका 16% का कंप्यूटेशन जो है वो XYZ रिस्क पे बेस है. अब मैं XY रिस्क को अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कराता हूँ तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ऊपर नीचे होगा. दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. इस पर कोई डाउट? No, I thought that we have already freezed this 16%, and now we are introducing this statement. नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला कि वो लोन मैंने 16% पे ले लिया. हमने 7-8 बैंक को, एक सेकंड फजलुर, हमने 7-8 बैंक को, आई थिंक 9 बैंक को अप्रोच किया था. उस 9 बैंक में से 2 बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम लोन नहीं देंगे. 7 बैंक ने यस दिया कि हम लोन देंगे. उन बैंक्स ने अपने कोटेशंस दिए कि हम इतना लोन दे सकते हैं इतने इंटरेस्ट रेट पे. दिस इज व्हाट वी डिस्कस. फिर मैंने आपको बताया उसमें से सबसे हाईएस्ट रेट जो था वो हमने ले लिया कैलकुलेशन के लिए कि चलो हम आगे लेके चलते हैं. उसके बाद उस बैंक को मैंने बोला जाके कि यार ये अगर मैं प्लस और माइनस करूंगा तो तुम्हारे इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज होगा क्या, वो हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ लोन स्ट्रक्चर. अब ये सब करने के बाद जो मुझे रिवाइज रेट वो देगा तब मैं आगे जाके अपनी कैलकुलेशन करूंगा. दैट इज द प्रोसेस ऑफ दिस. अगर सिंपल रखना चाहते हो ये सारा डिस्कशन को हटा देते हैं और फिर हम 16% पे कैलकुलेशन कर सकते हैं. दैट ऑल्सो ओके. बट रियल ट्रांजेक्शन में जो 16% था उसमें हमने ये सब नेगोशिएशन करे थे, इसलिए वही शेयर कर रहा हूँ. बट आई एग्री ये पार्ट ऑफ मॉडलिंग ना होकर ये पार्ट ऑफ लोन स्ट्रक्चरिंग है. सो ये जो लोन स्ट्रक्चरिंग डेस्क होते हैं IBs में उनका काम है. बट बिकॉज आई वाज लुकिंग एट दैट डेस्क ऑल्सो, तो इसलिए वो पीस को भी हम इस ट्रांजेक्शन में ले आए थे. हाँ फजल बोलो. यहाँ जो कंपनी कैश फ्लो से लिंक करवा रही है अपनी इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट को तो नहीं सर बोला, यहाँ पर इंटरेस्ट लोन रिपेमेंट को, हाँ लोन रिपेमेंट को, तो ये सर ये अनसर्टेनिटी रिस्क यहाँ पर हो रहा है. करेक्ट. जिसके कारण उसका रिस्क डिक्रीज भी तो हो सकता है सर, अगर मैच्योर पीरियड से बहुत पहले अगर पेमेंट कर देता है तो.
हेलो, मैच्योरिटी से पहले पेमेंट कर दे तो बैंक के लिए रिस्क कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है? कम हो जाएगा ना सर? क्रेडिट रिस्क कम हो जाएगा और रीफाइनेंस रिस्क तो बढ़ जाएगा। रीफाइनेंस रिस्क ये नहीं समझ में आया। हाँ, तो रीफाइनेंस रिस्क क्या होता है? आपने मुझे 100 रुपए दिए, ठीक है, सोच के 100 रुपए दिए और मैंने बोला फजलुल मैं तेरे को 5 साल में पेमेंट करूंगा, ठीक है। अब तू क्या सोच के बैठा है? तू सोच के बैठा कि ये निशान से 5 साल तक मुझे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। मैंने तीसरे साल में आया, तेरे को कहा फजलुल ले अपना पैसा पकड़, आई वांट टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट। तो तेरा जो 2 साल का रिटर्न कमा सकता था वो चला गया ना। ये सर, ये तो सो फिर अब यहाँ तू पे तीसरे फिर साल ये सुन पूरा सुन। थर्ड ईयर के एंड में अब तू किसी और को लोन देने के लिए जाता है, क्योंकि मैंने तुझे पैसा दे दिया ना, तू किसी और को लोन देने के लिए जाता है। जब तू किसी और को लोन देने के लिए जाता है तब हो सकता है इंटरेस्ट रेट मार्केट में डिक्रीज हो चुका हो, इसको रीफाइनेंसिंग रिस्क बोलते हैं। पूछो क्या क्वेश्चन? सर ये चीज तो फिर EMI में क्रिएट होता है ना रीफाइनेंसिंग। अगर इसमें भी हो रहा है तब तो फिर बहुत ज्यादा ही हो जाएगा रिस्क। EMI में क्रिएट नहीं होता, क्योंकि EMI में मेरा फिक्स हो जाता है कितना अमाउंट मिलेगा, तो मेरा कोई रीफाइनेंसिंग रिस्क नहीं है। मुझे पता होता है किस साल में कितना पैसा आने वाला है और उस पैसे का मैं यूटिलाइजेशन क्या करूंगा वो मेरे को पहले से डिफाइन होता है। बट उस रीफाइनेंशियल रिस्क केस कब में भी आता है? अगर कम रुको, रीफाइनेंशियल रिस्क हाँ कब आता है? जब मुझे क्लैरिटी नहीं है कि कब कितना अमाउंट मुझे मिलने वाला है। अच्छा, आपने सुना फजलूर कि पहले इंडिया में अगर हमने बैंक से लोन लिया और बैंक, सपोज मैंने लोन लिया 5 साल का, और अगर मैं लोन रीपेमेंट जाके 1 साल में कर देता तो बैंक कुछ चार्जेस मारते थे। सुना है कभी? ये यस सर। प्री पेमेंट क्लॉजेस करके होते हैं ये। वो बैंक चार्ज क्यों मारता है आपको? आपको तो खुश, बैंक को तो खुश होना चाहिए मेरा पैसा वापस आ गया, तो इसीलिए मारता है। क्योंकि वो जो बैंक ने आपको जब लोन दिया था तो आपको बैंक ने एक रिस्क लेके लोन दिया था। आपने जब आगे पहले पेमेंट कर दिया तो उसका एक दूसरा टाइप ऑफ रिस्क इंक्रीज हो जाता है और उसका आपको चार्ज मार देता है। पूछो कोई डाउट हो तो। क्लियर सर, क्लियर। किसी को भी कोई डाउट इसमें? द क्लॉज विच इज हाइलाइटेड इन ग्रीन, and this is not earlier, this is now also. The prepayment you have to pay to the bank, how much prepayment you are doing it, because this is now in India, it's in RBI guidelines. हाँ, इस पे अभी थोड़ा सा डायनेमिक्स चेंज हो गया, बट अभी भी बैंक्स बेवकूफ बना, मतलब बैंक्स कस्टमर को चार्ज करते हैं, बट थोड़ा सा करने का तरीके में डिफरेंस है। बट ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हाँ अभी भी होता है, मान के चलते हैं। आरबीआई ने एक्सिस बैंक और एक दो बैंक पे इस पे काफी पेनल्टी वगैरह लगाई थी कुछ चीजों को लेके, बट ठीक है वो एक अलग डिस्कशन है। So, which brings you the same point, करेक्ट, कि अगर मैं बैंक को जाके जल्दी पे करता हूँ और लेट पे करता हूँ, दोनों ही केस में बैंक का कोई ना कोई रिस्क बढ़ रहा है, और बढ़ रहा तो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग बाय एडिंग अ ग्रीन क्लॉज। इफ आई प्रपोज टू ऐड अ ग्रीन क्लॉज and if bank agrees to add that clause, this will increase the risk for the bank. कोई डाउट है तो पूछें तो। ठीक है, अगर नहीं सो हम 16 से स्टार्ट किया था हमने। 16 को मैं 15.5 पे लेके आया और 15.5 में फिर से उसने कुछ ऐड किया एंड दिस गोज बैक टू लेट्स अज्यूम 16 और 16.10। किसी को डाउट यहाँ तो? And in this prepayment, जो आप if anything we need to give it to bank for this prepayment of this loan outstanding, then that cost we have to also factor in this, no?
नहीं समझ, सॉरी, कॉस्ट कौन सा कॉस्ट? The prepayment cost. If you're paying in advance to bank will charge something to you. वो चार्ज कर लिया ना बैंक ने, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ना। अब जब बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो दोबारा प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगाएगा ना वो। इंडिया में यही मैं आपको समझा रहा था, इंडिया में यही चेंज हुआ है, ठीक है, बट मैं उस प्राइसिंग में नहीं जाऊंगा अभी। तो इंडिया में जब बैंक मुझे लोन देता है तो आप बैंक को बोलते हो कि मैं 5 साल में पेमेंट करूंगा, तो बैंक कहता है अच्छा ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको दिया वो ओके। फिर बाद में जाके सडनली कहते मैं पहले पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसने जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया था उसमें उसको ऐड नहीं किया था, इसलिए वो आपको चार्ज करता है। कुछ बैंक्स क्या कर रहे थे, दोनों तरफ आपको चार्ज कर रहे थे, इसलिए आरबीआई केम हेवीली टू दोस बैंक्स। इस वाले केस में उसने मुझे जो 15.5 से दीपक अब 16.1 लेके गया है, वो ऑलरेडी वो चार्ज मार दिया ना उसने मेरे को अपफ्रंट। यस और नो? Okay, both the risk has been countered in this. करेक्ट। ये जो 60 बेसिस पॉइंट ऐड किया है इसमें ऑलरेडी उसने वो दोनों रिस्क को कर दिया ना, कि क्रेडिट रिस्क अगर बढ़ेगा तो दो सिनेरियो हो सकते हैं इस चक्कर में, कि मैं लेट पेमेंट कर दूं या जल्दी पेमेंट कर दूं। उस दोनों को कंसिडर करके उसने 60 बेसिस पॉइंट मार दिया मेरे को। अब मैं जिस दिन जल्दी पेमेंट करने जाऊंगा उस दिन दोबारा चार्ज करे, ये तो गलत हो गया ना। यही हो रहा था इंडिया में। दीपक, you're okay with this कि दोबारा कोई प्रीपेमेंट चार्ज की जरूरत नहीं है उसमें? Yes. अच्छा सही। ये इंटरेस्ट रेट जो है ये प्री मैच्योर पर भी ये है क्या सर? दोबारा बोल। ये इंटरेस्ट रेट जो है अगर प्री मैच्योर भी कर सकते हैं तभी ये इंटरेस्ट रेट पर भी दिया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट रेट है, अगर हमने ये क्लॉजेज ऐड कराए तो इस रेट पे बैंक हमें लोन देगा, और अगर मैंने इस रेट पे एग्री कर लिया और अब जाके प्रीपेमेंट किया तो मुझे एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर सर? हाँ जी, सो आर वी गुड विद दिस? अच्छा ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये ग्रीन क्लॉज मैं क्यों ऐड करवा रहा हूं? Why I am interested in getting this clause added? और इसी वजह से तो मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया। सो टेक्निकल आई शुड नॉट बी the one who should be aggressively pushing this, but you were aggressively pushing this. क्यों? उसका रीजन ये है, because we were starting something new, हम स्टार्ट कर रहे थे, and we do not want to run this bankruptcy risk. So what we wanted, हमारा जो क्लाइंट से डिस्कशन हुआ कि इस बैंक्रप्सी रिस्क को डिक्रीज करते हैं। टू डिक्रीज दिस रिस्क, और ये मैं क्लाइंट साइड से समझा रहा हूं आपको, टू डिक्रीज दिस रिस्क वी नीड टू गेट अवे फ्रॉम फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ द EMI। फिक्स्ड EMI के कमिटमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा। And of course, for this, we need to pay some cost, which is 60 basis point in this case.
ये हमारा मोटिवेशन था टू पुश दिस क्लॉज। किसी को डाउट है तो पूछिए। यू एग्री कि ये क्लॉज को ऐड करने से क्लाइंट का बैंकरप्सी रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अब बैंक क्लाइंट के ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं है कि इतना ईएमआई पे करना है, विच मीन्स नाउ अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशंस में पैसा नहीं आता है, ठीक है, या कुछ अनफोर्सिन खर्चे आ जाते हैं या कुछ भी सिनेरियो होता है, ठीक है, एंड इफ यू स्ट्रगलिंग ऑफ सब कैश फ्लो, तो हम मैं उस मंथ में या उस साल में ईएमआई कम भी पे कर सकता हूँ। और लेटर पार्ट ऑफ द ईयर्स में अगर कैश फ्लोज अच्छे आने शुरू होता है तो मैं वहां पर रिकवर कर लूंगा। बट माई रेपुटेशन द मार्केट विल नॉट गो फॉर अ टॉस, देयर विल नॉट बी अ बैंक्रप्सी रिस्क दैट विल बी ट्रिगर्ड बाय द बैंक्रप्सी क्लॉज दैट विल बी ट्रिगर्ड बाय द बैंक। कोई डाउट है तो पूछिए। देन ये इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ से होगा इनिशियल ईयर्स में? कहाँ से होगा मतलब? लाइक जो हमने कॉस्ट पूरी कैलकुलेट कर ली है तो उसमें बैंक इंटरेस्ट थोड़ी होगा, अब क्योंकि इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट नहीं किया, करवाऊंगा जब जब लोन मॉडलिंग में जाएंगे तो करेंगे। सो जो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट 10 करोड़ गिवन था उसमें क्या इंटरेस्ट रेट इंक्लूडेड है, द आंसर इज नो। बट वो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इनकर होगी व्हेन द ऑपरेशन विल स्टार्ट, राइट? करेक्ट। और लेकिन हमें जो इंटरेस्ट ऑन ईएमआई पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, वो तो हमें लोन लेते ही पे करना पड़ेगा। नहीं, अब नहीं ना, ये क्लॉज को ऐड करने से जो ग्रीन में क्लॉज ऐड किया उसका मतलब देखो ना पारुल, उसका मतलब यही है कि जब पैसा आएगा तभी दूंगा, चाहे बिजनेस स्टार्ट हो चाहे नहीं हो। अच्छा, नॉट इवन द इंटरेस्ट? नॉट इवन द इंटरेस्ट, आई विल नॉट पे यू सिंगल पेनी टिल आई हैव मनी। ठीक है। Even if my business start and I don't have a penny, I will not pay you. इसी को वाटरफॉल कैश फ्लो बोलते हैं। अगेन आई एम नॉट कमिटिंग हम लोग करेंगे बिकॉज दिस वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हेन वी रीच दैट स्टेज, अगर आप लोग कंफर्टेबल हुए तो ये करेंगे, अगर स्ट्रगल होना शुरू हुआ तो प्रॉब्ली विल रीअसेस दिस। बट विदाउट गेटिंग इन टू मच ऑफ दिस एज ऑफ नाउ, मैं जस्ट ब्रीफली बताता हूँ वाटरफॉल कैश फ्लो क्या होता है। सो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन थ्रू this pictorial image of kind of in waterfall. So for example, again my drawing is not very good, let's assume this is a hill, ठीक है, यहाँ से कोई waterfall है, ठीक है। So what does this mean? यहाँ पे water गिर रहा है नीचे, और let's assume यहाँ पे एक bucket लगाया हुआ मैंने। ये जो bucket है ये बैंक का bucket है, बैंक लोन का रिपेमेंट का bucket है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जितना ये ऊपर से पैसा है, ये मेरा रेवेन्यू होता है, यहाँ से पैसा आना शुरू होता है वाटरफॉल। जितना पैसा नीचे पहुंचेगा आखिरी में, मैं उतना आपके बकेट में गिरेगा और उतना आपको लोन पेमेंट कर दूंगा। अगर कुछ नहीं बचेगा आखिरी तक तो कुछ नहीं दूंगा, बचेगा ज्यादा तो ज्यादा दे दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज वाटरफॉल कैश फ्लो। अब यहाँ पे सब एक्सपेंसेस खड़े हैं ऑन द वे डाउन टू हिल। ये सब एक्सपेंसेस को खत्म करते 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 अगर पैसा या पानी नीचे बचा तो आपको मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। दैट इज द रिस्क, एंड वी नीड टू प्रिपेयर दिस वाटरफॉल कैश फ्लो, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है विद ट्रेडिशनल लोन मॉडलिंग, ठीक है। वो देखेंगे व्हेन वी रीच टू दैट स्टेज कि क्या स्टेटस है, एंड आर वी इन अ पोजीशन टू डू दिस और वी हैव टू गो थ्रू द ट्रेडिशनल रूट। बट from broadly conceptual perspective, this is what it is. कोई डाउट है तो पूछ।
हाँ जी, कोई डाउट इसमें? ठीक है। And then once the entire loan is repaid, the balance cash flow of the current be distributed as dividend. ये भी हमने ऐड करवाया। देख लो ये क्लॉज, थर्ड क्लॉज। So this clause means I will not pay any dividend to my shareholders unless I repay the entire loan. तो मेरे शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक सारा का सारा लोन आपको रिपेमेंट नहीं होगा। So this will decrease or increase the risk for the bank. No impact. डिक्रीज करेगा। नो इम्पैक्ट क्यों? आप मुझे लोन दे रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अपने शेयर होल्डर को मैं पैसा नहीं दूंगा जब तक आपको सारा का सारा लोन पेमेंट नहीं कर देते। मतलब नो आइडियली इम्पैक्ट तो क्यों? डिक्रीज होगा, आइडियली तो डिक्रीज होगा, अरे ये क्या आइडियली आइडियल डिक्रीज होगा बट नो इम्पैक्ट। लेकिन बट ये नॉर्मली भी ऐसे ही होता है ना कि पहले नहीं आप होता है। अपने खर्चे पे करते हो, फिर उसके खर्चे बाद ही पे करते हो, डिविडेंड। करेक्ट, उसके बाद डिविडेंड पे करते हो। बट उस साल के अगर आपने खर्चे पे कर दिए पारुल, तो आप डिविडेंड पे कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने अगर इस साल आपको लोन की ईएमआई पे कर भी दी, बट अभी भी अगले 2-3 सालों का लोन बाकी है जिनका ड्यू पेमेंट अगले साल होने वाला है, तो भी मैं पे नहीं करूंगा जब तक अगर मेरे 5 साल तक सपोज मेरा लोन पूरा लोन रिपेमेंट 5 साल में कंप्लीट होता है, तो 5 साल तक मैं शेयर होल्डर्स को एक भी रुपया डिविडेंड पे नहीं करूंगा। दैट इज व्हाट इट मींस। जो टिपिकली होता है मैंने आज बैंक को अपनी ईएमआई पे कर दी, ठीक है, उस ईएमआई पे करने के बाद मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूँ ना शेयर होल्डर्स को, मैं वो भी नहीं करूंगा जब तक मैं आपका पूरा लोन रिपेमेंट करके अपनी बैलेंस शीट में डेट को जीरो नहीं करूंगा, तब तक मैं आपको अपने शेयर होल्डर कोई भी हाँ, तो डिविडेंड पे बट नहीं एनी करूंगा। हाउ बैंक को ये नॉलेज है कि वी आर द मतलब हमारी फर्स्ट जिसे बोलते हैं अथॉरिटी है कि हमें पहले पे होगा अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स एज पर अकाउंटिंग रूल्स। करेक्ट। तो बैंक को तो आई तो डोंट मैंने थिंक बैंक को इससे फर्क पड़ेगा कि आप ये क्लॉज ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पड़ेगा पारुल, क्योंकि देखो मेरा लेट्स से मेरे को आपको ईएमआई पे कर दिया, उसके बाद आई एम फ्री टू यूज दैट मनी। पारुल, यस यस फॉर द फर्स्ट ईयर लेट्स से आई पेड ईएमआई, मैंने ईएमआई आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे दी, चलो ज्यादा पैसा आया था, मैंने ज्यादा ईएमआई भर दी, अब मेरे पास फिर भी कैश फ्लो बचा हुआ है, मैं क्या उसको डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज कर सकता हूँ? बोथ एज पर अकाउंटिंग नॉर्म्स एंड एज पर द लॉ अलाउड है। यस यस अलाउड है। By adding this clause, I am telling the bank, I am giving a comfort to the bank, I will not use that money for repayment of the loan. Sorry, I will not use that money for the dividend payments. I will keep that money and I will continue to do this till the time from my balance sheet debt goes off. ये तो फिर वही खुश करने वाली बात हो गई ना, बिकॉज उनका हक तो पहले है ही ना, उनका अथॉरिटी पहले है ही ना रिपेमेंट का। तो वो पैसा अगले साल उसके उसके कंफर्ट में ऐड होगा ना जाके, वो सेविंग्स जो हैं या रिजर्व जो बचे हैं, rather than withdrawing that reserves और rather than paying this as a dividend, वो नेक्स्ट ईयर उसको जो रीपेमेंट करनी है उस कैश फ्लो में और मोटा अमाउंट ऐड हो जाएगा ना। हाँ तो हाँ, मैं उसको खुश कर रहा हूँ, मैं उसको खुश करने का ऑब्जेक्टिव है, उसको खुश करके उसका रिस्क कम कर रहा हूँ। ओके। और ये रिगार्डिंग द डिविडेंड वी हैव इनिशियली ऑप्टेड फॉर इक्विटी फ्रॉम द पेरेंट कंपनी। या 85 तो करोड़ ये पेरेंट ने दिया। तो ये डिविडेंड किसको देंगे हम? ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा? पेरेंट को, पेरेंट प्रॉफिट शेयरिंग डिविडेंड ही तो होता है। सेम ही है ना। ओके। ठीक है, सो इसको ऐड करने की वजह से बैंक मेरा छोटा सा
इंटरेस्ट और कम कर देगा। सो लेट्स assume बैंक ने फाइनल कोड दिया मुझे 15.9, कोई डाउट? मैं जो अपनी कैलकुलेशन है ये 15.9 से करूंगा। तो इस केस में 15.9 जो है वो ये अमाउंट है 15%, क्योंकि मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल नंबर्स लेके करा इसलिए वो मैच नहीं हुआ। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, जो 15% आपको दिख रहा है ये रेट बैंक ने जो फर्स्ट रेट दिया था वो नहीं था, उसके साथ ही प्लस माइनस करने के बाद जो बैंक ने एग्री किया ओके ये सब क्लॉजेस भी मैं प्लस करने के बाद मेरा रिवाइज रेट ये होगा, अगर आपको बिड मिल जाती है तो मैं इस रेट पे लोन दे सकता हूं, उस रेट से मैं कंप्यूटेशन करूंगा इसमें। तो एनी डाउट? तो हमारा लास्ट पैरा भी हो गया, कुछ पूछना सर है तो बताइए लास्ट पैरा में। यस श्रीकांत। सर इसमें ये जो लास्ट क्लॉज है कि द एंटायर लोन इज रीपेड, वंस द एंटायर लोन इज रीपेड द बैलेंस फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। सर तो इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि जो हम अपना जो हमारा एक्स्ट्रा कैश फ्लो का उससे हम प्रिंसिपल का रीपेमेंट करेंगे कि वो जितना ईएमआई है उतना ही पे करेंगे? इसका ये मतलब है कि मेरे पास जितना पैसा बचेगा वो सारा का सारा पैसा मैं लोन रिपेमेंट में यूज करूंगा, मैं शेयर होल्डर को कुछ भी पे नहीं करूंगा जब तक मेरा पूरा लोन खत्म नहीं होता। मतलब जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो आएगा वो भी लोन के रीपेमेंट में ही जाएगा? यस। ओके सर। लास्ट टाइम एनी क्वेश्चन द लास्ट पैरा? सर या सर ये जो इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट करेगा वो उसमें इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग होगी? यस होगी, वो करेंगे जब हम लोन मॉडल बनाएंगे तब करेंगे, बट हाँ होगी, कंपाउंडिंग होगी। एक चीज और सर, ये जो डेप्रिसिएशन है ये सर स्ट्रेट लाइन मेथड पे जाएगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस पे जाएगा? तो जो भी उस कंट्री के लॉ में डिफाइन है उस पर जाएगा, तो अभी के लिए स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। ओके सर। ये मैं और आप चूज नहीं कर रहे हैं, जो उस कंट्री के लॉ में है वो करेंगे। ओके सर। सर मुझे ये सेकंड पर ये जो है ना सेकंड लाइन का क्यों ऐड करवाया गया है इस क्लॉज को, ये नहीं समझ में आया, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। कौन सा सेकंड क्लॉज? द repayment of the loan would be paid purely from the cash flow of the project। किसकी पर्सपेक्टिव ये से क्यों समझ ऐड रहे कर हैं रहे आपको, क्लाइंट की बैंक? कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? मैंने 2 पार्ट समझाया। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। तो इससे मुझे कंफर्ट मिल जाएगा ना फॉर अ क्लाइंट वुड बी अंडर client will have a flexibility that in the first year if the client is not able to generate good cash flow, so it's okay, default नहीं होगा। हाँ फजूल, क्लियर है? वो कैसे सर डिफॉल्ट नहीं होगा? अरे आपको कमिटमेंट नहीं है ना, ईएमआई पे करनी है। अगर आप कम पैसा तो कम ईएमआई पे करोगे, नहीं पैसा तो नहीं ईएमआई पे करोगे। अगर आप बैंक से लोन लेते हो और आपका बैंक की ईएमआई फिक्स हो जाती है 100 रुपीज, अब आपकी सैलरी अगर कम हो गई और आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो डिफॉल्ट नहीं होता। बट लोन की रिपेमेंट तो ये कैश फ्लो पर डिपेंड कर रही है ना सर, कि जब कैश फ्लो जनरेट होगा उसका। तो यही क्लॉज तो ऐड कर रहे हैं ना, ये क्लॉज को ऐड ही करने के लिए आप पूछ रहे हो क्यों ऐड कर रहे हैं। ये क्लॉज को ऐड करने से मेरा बैंकरप्सी रिस्क कम हो गया ना। अगर ये क्लॉज ऐड नहीं करूंगा तो मेरी फिक्स कमिटमेंट हो जाएगी ना।
इससे बैंकरप्सी रिस्क कैसे कम होगा सर क्लाइंट का? आप जब लोन लेते हो बैंक से, आपकी हर मंथ एक फिक्स ईएमआई फिक्स होती है, कमिटमेंट होती है। यस सर। अगर उस मंथ आपकी सैलरी कम हो जाए तब भी आपको उतना पे करना पड़ेगा। यस सर। और अगर नहीं पे करो तो डिफॉल्ट हो जाता है, यस सर। उसको बैंकरप्सी रिस्क बोलते हैं। यस सर। अगर मैं कह दूं कि वो आपकी फिक्स अमाउंट की जरूरत नहीं है, अगर पैसा हो तो पे करना, नहीं हो तो मत पे करना, वो बैंकरप्सी रिस्क कम नहीं होगा। बट सर यहाँ पर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन भी तो बढ़ गया ना इसका। अरे पहले बैंकरप्सी रिस्क कम होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या है? इसका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन भी तो बढ़ गया ना। कहाँ बढ़ गया? ऑब्लिगेशन कोई है ही नहीं। पैसा जब होगा तो पे करूंगा, नहीं होगा तो नहीं पे करूंगा। ऑब्लिगेशन है, उस अमाउंट, ऑब्लिगेशन की फिक्स्ड अमाउंट तो नहीं है ना। मुझे ये ऑब्लिगेशन ना, मेरे को लोन रिपेमेंट करना है, मैं करूंगा, बट फर्स्ट ईयर में कितना करूंगा, सेकंड ईयर में कितना करूंगा, थर्ड ईयर में करूंगा, वो मेरी फ्रीडम है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी। जितना पैसा होगा उतना पे करूंगा। मैच्योर पीरियड इससे ज्यादा चला जाएगा इससे। जा सकता है, डिले भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। ठीक है। यस सर। ठीक है, एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट बिफोर वी क्लोज? सर इसमें जैसे आपने बताया कॉस्ट ऑफ द डेब्ट हमने तो निकाल दी 15%, और ये इक्विटी की कॉस्ट एग्जैक्ट 21% कैसे आएगी? सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं। बस सर इस क्लॉज से उसका इंटरेस्ट रेट कहाँ डिक्रीज हुआ? इंटरेस्ट रेट तो उसका बढ़ ही जाएगा ना, तो बढ़ाया ज्यादा ही है ना, इंटरेस्ट रेट से उसे। बढ़ाया ही है ना। मैंने कब डिक्रीज किया? इस क्लॉज से तो इंक्रीज ही किया है ना। एंड थर्ड क्लॉज से डिक्रीज हो रहा है। हाँ क्लियर सर। चलिए ठीक है। सो इतना रखते हैं, विल कनेक्ट ऑन वेडनेसडे। और जो आपका वो रिकॉर्डिंग सेशंस का था वो मेरे पास है अभी, सो आई एम येट टू गेट दैट क्लोजर विद आर्मी, सो आई विल गेट दैट क्लोज और फिर मैं वेडनेसडे को आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक्स, बाय।